Good morning, class. Welcome to this lecture of IMC. So today we are going to see depreciation. This is our fifth unit. We have already seen so many things up till now. We have seen the balance sheet. We have seen the different kinds of the assets. We have seen the liabilities. What do you mean by assets? What do you mean by liabilities? And so many things. Today we are going to see what do you mean by depreciation and what is depreciation, how you are going to calculate it. So basically, to understand the depreciation, first you must understand that whenever you purchase something in for an industry, for any item that you purchase for industry, whatever it may be, it has some particular lifetime. उसका कुछ तो भी लाइफ स्पैन होता है ना. आफ्टर दैट पर्टिकुलर लाइफ स्पैन इज रिच्ड, इट विल गेट डिटेरिएटेड. उसके बाद में मतलब वो खराब होना शुरू हो जाएगा, उसका रिपेयरिंग बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा. तो व्हाट हैपन्स कि डेप्रिसिएशन बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को जो टैक्सेस बच सके, हम लोगों को जो कुछ भी हमारी बैलेंस शीट है वो प्रॉपर हो सके, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट प्रॉपरली बन सके और हमारा जो एनालिसिस है वो सही हो सके. सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट बेसिकली इज डेप्रिसिएशन, मतलब फिर एग्जैक्टली क्या है तो वैसा देखते. देखो, डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Depreciation represents how much of an asset's value has been used up. Depreciating assets help companies earn revenue from an asset while expensing a portion of its cost each year the asset is in use. अब इतने जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे और देखते हैं. इफ इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इट कैन ग्रेटली अफेक्ट प्रॉफिट्स. इफ इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स इट कैन ग्रेटली अफेक्ट प्रॉफिट्स. It is an accounting convention that allows a company to write off an asset's value over a period of time, commonly the asset's useful life. Now, being said all this, let us understand why is depreciation. Suppose you bought a particular machine at 1 crore rupees for an industry. Now the life of that particular machine is suppose 20 years. So now when you prepare the balance sheet, the assets and the liabilities that you count, so we have already said that the business must be having a right position. The business must be, if your business is having a higher liquidity, your business is in a solid position. So that is the case. तो अब अगर आपने क्या किया कि 2 करोड़ की मशीन, यू हैव परचेस्ड अ मशीन वर्थ रुपीज 2 करोड़ एंड द लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन इज सपोज 20 years. So what happens you allocate that value to the 20 years. That means you say that you have purchased that machine for 20 years. So directly 2 crore as a liability we are not going to count in the very first year. We are going to count it over a period of 20 years. मतलब हम क्या करेंगे, 20 से उसको डिवाइड करेंगे. तो हर साल फिर कैसा होगा कि 10 लाख पहले साल में, 10 लाख दूसरे साल में. तो अब क्या होगा, अब सपोज हमारा जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ उसको हमने सेल किया, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमने जो मशीन ली है उसको सिर्फ हमने कितना दिया, उसको सिर्फ हमने 10 लाख रुपीज़ इस बार लगाए हुए हैं. कि अगर आप बोलोगे कि आपने 2 करोड़ की मशीन लगाया और फिर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपकी जो लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उससे क्या आपका बिजनेस लॉस में आ जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ तो आप एक साल के अंदर रिकवर नहीं कर सकते. So it is not practically possible. By using a particular machine you are going to cover its entire cost in the very first year. So what you do, आप ऐसा करते हो कि उसको धीरे 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 टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हो और ये समझ के चलते हो कि 20 साल तक अगर उस मशीन की वजह से 20 साल तक अगर उस मशीन की वजह से आपको 10 लाख रुपीस अगर मिलता है तो दैट मीन्स वो बैलेंस बरोबर है. तो मतलब क्या होगा कि 20 साल के बाद में वो मशीन की पूरी कॉस्ट आपकी निकल जाएगी. दिस इज an example. This is just an example to understand depreciation. So depreciation means you just allocate, accounting method of allocating the cost of a tangible or a physical asset over its useful life or life expectancy. मतलब उसका जितना लाइफ का ड्यूरेशन है हम उस कॉस्ट को उस पूरे लाइफ के ड्यूरेशन से अलोकेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे विथ इट्स पर्टिकुलर लाइफ टाइम. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर से उसको शुरू कर देंगे, नहीं. वी आर गोइंग टू असेट दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विथ इट्स एंटायर लाइफ टाइम. इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच एफ एन असेट्स वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप. सेकेंड पार्ट कि अब हमने क्या किया कि अब हमने सपोज एक 2 करोड़ की मशीन लाई, अब एक साल बाद हमको उसको बेचना रहा तो उसकी प्राइस तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कम हो जाएंगी, उसकी प्राइस ऑलरेडी कम हो जाएंगी. तो कितनी कम होगी, तो हमको पता रहते चलेंगे जो हमने कल 2 करोड़ में लिया था आज एक साल बाद उसकी प्राइस सपोज 1 करोड़ 80 लाख है. नेक्स्ट इसमें उसकी प्राइस सपोज 1 करोड़ 70 लाख है. नेक्स्ट ईयर और उससे कम होती जा रही, 20 ईयर्स में धीरे धीरे कम होती जाए. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता रहता है कि उसकी एग्जैक्टली आपके एसेट की वैल्यू कितनी है. और ये सब आपको क्यों चाहिए था कि आपको बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और आपको बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है.
तो नहीं तो क्या होगा, आपने 2 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल दिए तो आपकी हो गई लाइबिलिटी, बिकॉज यू आर परचेसिंग समथिंग, सो दैट इज अ लाइबिलिटी। अब वो लाइबिलिटी आपकी बैलेंस्ड ही नहीं हो रही, आपके एसेट्स के साथ मैच ही नहीं हो पा रही वो लाइबिलिटी, क्योंकि आपने 2 करोड़ सीधे सीधे लगा दिए और आपको उस हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसलिए वो क्या करते, हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ स्पेंड डिस्ट्रीब्यूट करते। अब ऐसा भी होता है एग्जैक्टली कंसेप्ट, जैसे हम ईएमआई करते ना, कि हमने कुछ भी चीज़ खरीदी तो हम वन टाइम उसका पेमेंट नहीं कर पाते तो हम ईएमआई में देते, उससे कैसे हमको सुविधा होती। ये एग्जैक्टली वैसा ही कंसेप्ट इनका डेप्रिसिएशन का, कि ये कोई भी बड़ी चीज़ खरीदते तो ऐसे सपोज कि उन्होंने 2 करोड़ की चीज़ बैंक से खरीद ली और हर साल वो 10-10 लाख रुपए बैंक को दे रहे, बस दैट सिंपल। तो हर साल 10 लाख रुपए बैंक को देते चले जा रहे, तो उसको उनको पहले साल में मशीन कितने में पड़ी, 10 लाख में, दूसरे साल में 10 लाख में, तीसरे साल में 10 लाख में, मतलब 20 साल में उन्होंने 2 करोड़ की वो मशीन का पूरा पैसा चुका दिया। सो दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज। और ये क्यों करना पड़ता, ताकि आपका सेविंग हो सके, आपकी बैलेंस शीट प्रॉपरली हो सके, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज सही हो, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ योर एसेट। Depreciating assets helps companies earn revenue from an asset while expensing a portion of its cost each year the asset is in use। और फिर आप इसकी वजह से क्या होता, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन वैल्यू कुछ पकड़ोगे कि ठीक है इतना उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ओके, सो दैट वैल्यू हैज टू बी रिड्यूस्ड और समवेयर दैट वैल्यू हैज टू बी एडेड। इफ नॉट टेकन इनटू अकाउंट इट कैन ग्रेटली अफेक्ट प्रॉफिट्स। It is an accounting convention that allows the company to write off an asset's value over a period of time, commonly the asset's useful life। अब उसके बाद में एक और छोटा सा एग्जांपल बता दें, इससे आपके समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, एक ज़मीन खरीदी और हमको पता है कि वी हैव टू पे द टैक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, वी हैव टू पे द टैक्स ऑफ हाउस। तो ज़मीन का हमको हर साल गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अब हमने सपोज 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, तो 2 करोड़ के हिसाब से जो कुछ भी उनके टैक्स के वैल्यूज़ होंगे वो हमको उनको पे करना है, जो कुछ भी होगा एज पर दैट पर्टिकुलर 2 करोड़, जो भी 10, 20, 30%। अब इस साल हमने पे किया, नेक्स्ट ईयर भी हमको वही 2 करोड़ भी पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी। तो अब यही सपोज जमीन से उठा के कंसेप्ट हम बाकी इंडस्ट्रीज पे लेके आते, तो अब यही कंसेप्ट आप देखो कि आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे सर मैंने जो लिया था इस साल 2 करोड़ इसका एस्टिमेट था, लेकिन आज ये इसकी वैल्यू कम हो गई, ये डेप्रिशिएट होगी, तो इस पर मुझे इतना पैसा नहीं लगना चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं होना। तो इस तरह से क्या होगा, कई सारे एसेट्स रहते हैं। अब नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड ये, लेकिन ये कंसेप्ट कई तरह के एसेट्स ऐसे रहते कि जिसके ऊपर अगर आपको कुछ टैक्सेस पे करना है तो आप कम हो जाते कि नहीं, हाँ सर हमने ऐसा यूज़ ही नहीं किया, ये हमारे पास था ही नहीं। या फिर जैसे आपने रॉ मटेरियल बहुत सारा बोला है तो वो सर उतना था ही नहीं, ये पुराना वर्क पड़ा था, ये ऐसे ख़राब होते चले, कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई। तो हम बता सकते हैं कि हमारी ये चीज़ें जो है इतना हमारा अर्निंग्स नहीं है, और इतना हमारा अर्निंग्स नहीं है क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन होता चला जा रहा, तो दैट मीन्स यू कैन बेनिफिट फॉर द टैक्स। ये थोड़े से फाइनेंस के कंसेप्ट है। अब सबसे सिंपल मैं बता था कि हमने देखा डेप्रिसिएशन क्यों, हमने मेन पार्ट के देखे कि डेप्रिसिएशन क्यों, लेकिन डेप्रिसिएशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता कि जैसे सपोज आप आज ने एक बाइक खरीदी, सपोज आपने 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी और आप अगर उसको अगले साल बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख से ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, तो जनरली 15% कम होगी, तो सपोज अब हो जाएंगे 85,000 की, मतलब जो 15,000 थे हो गया कि डेप्रिशिएट हो गया। तो आपने फिर उसको क्या कि 85,000 में बेच दिया, तो अब वो आपको बाइक कितने की पड़ी, 15,000 की, लेकिन 15,000 में आपने पूरे उसको 1 साल यूज़ किया, तो उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो पर मंथ आपको कितना लगा, अप्रॉक्सीमेटली 1,300 समथिंग, उतना भी नहीं, सपोज 1,000 एंड समथिंग आपको लगा, मतलब एक महीने के लिए आपको 1,000 में 1,300 रुपये के आसपास आपको बाइक मिल गई, और वो भी वो बाइक जिसकी कीमत 1 लाख थी। आया ख्याल में? तो डेप्रिसिएशन से बेस है, तो ये क्या करते हैं, मशीन्स परचेस कर लेंगे, जो इनको एसेट्स चाहिए वो परचेस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको पे करेंगे या फिर धीरे धीरे उसको यूज़ करेंगे, और पहले ही कैलकुलेट करेंगे कि ये 20 साल तक हमको चलाना है, एंड सो एज, सो दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज। आई होप यू मस्ट हैव गॉट आइडिया ऑफ व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन। अब तक तो आपके समझ में आ ही चुका होगा कि डेप्रिसिएशन क्या रहता है। Assets such as machinery and equipments are expensive. Instead of realizing the entire cost of the asset in year one, depreciating the assets allows companies to spread out that cost and generate revenue from it. एक ही बार में वो पूरा खर्चा नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते धीरे धीरे, कि हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि इसका पैसा हमको 20 साल में मिलना चाहिए। अब फिर डेप्रिसिएशन होता क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? फिजिकल कॉजेज, वियर एंड टीयर, डिस्ट्रक्शन एंड डिके। सो यू नो वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर मतलब वो यूज में ऐसा वो खराब होती, टूट फूट होती, घस जाती, मार लग जाता, वियर एंड टीयर जो कुछ भी होता, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल कॉज, सो दैट यू कैन कंट्रोल, वो कॉज हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन, हमने कोई नई गाड़ी ली, एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट हो गया, ये हो गया, डिस्ट्रक्शन। डिके, डिके मतलब खराब हो जाना, सड़ जाना,
जैसे किसी में जंग लगने से वजह से ख़राब हो गया, या फिर कुछ मटेरियल की रिएक्शंस होगी, या फिर कुछ ऐसा और भी कुछ हो गया जिसकी वजह से वो मटेरियल की वैल्यू खत्म हो गई। अब ये मटेरियल के लिए भी हो सकता है, मशीन्स के लिए भी हो सकता है, इट कुड बी फॉर एनी एसेट। सो दीज आर द फिजिकल कॉसेज। एंड इंपॉर्टेंटली कि जब हम फिजिकल कॉसेज की बात करते हैं तो ये जो तीनों चीज़ें वी कैन कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट। जैसे वियर एंड टियर थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन अगर हम केयरफुली हैंडल करें सो वी कैन कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट। डिस्ट्रक्शन हम बचा सकते हैं, डीके हम बचा सकते हैं, बट देयर आर अदर कॉजेज, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेज। तो सबसे पहले ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस मतलब वो खत्म ही हो जाना है। खत्म होना मतलब कि वो अभी भी वर्क कर रहा है, इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन, बट उससे कुछ ऐसा मॉडिफाइड आ गया तो वो खत्म हो गया। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे मोबाइल फ़ोन। तो एक ज़माना था जब हम ब्लैक एंड वाइट हैंडसेट यूज़ करते थे विद क्वार्टी कीपैड, और उसमें मल्टीमीडिया नहीं था। अब आज की डेट में हर किसी के पास टच स्क्रीन है, आपके पास स्मार्टफोन्स है, और उसके बाद में आपके दुनिया भरी की उसमें एडिशंस है। तो वो जो पुराना फ़ोन था वो खत्म हो गया, आज की डेट में कोई नहीं वापरता, तो वो ऑब्सोलेट ही हो गया। इसका मतलब ये खराब था ऐसा नहीं है, लेकिन उससे बहुत इंप्रूव्ड वर्जन्स मार्केट में आ गए। ऐसे अगर आपको पता होगा तो देयर वाज अ साइट, फेसबुक के पहले ऑरकुट काफ़ी लोग यूज़ करते थे, इट वाज आल्सो सोशल नेटवर्किंग साइट। सो ऑरकुट था, ऑरकुट चलता था, याहू मैसेंजर था, याहू मैसेंजर लोग यूज़ करते थे, बट इन टुडेज टेक्नोलॉजी दे हैव बिकम ऑब्सोलेट। मतलब वो बरोबर काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिव भी है, उनका जो कुछ भी फंक्शनैलिटी वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी, लेकिन आज की डेट में उनको कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या हो गए? ऑब्सोलेट। इन एडुकेसी मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहे, जिस चीज़ के लिए उनको बनाया था वो चीज़ को प्रॉपरली अगर वर्क नहीं करोगे तो फिर वो, जैसे सपोज कोई एक ऐप बनाया लेकिन वो ऐप का उतना वर्किंग ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए बनाया वही नहीं हो पा रहा, तो दैट इज इन एजुकेशन। इफ्लक्शन ऑफ टाइम। इफ्लक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या है कि जैसे हमने लीज पे कोई चीज़ ली, सपोज हमने 20 साल के लीज के लिए लिया हुआ है, तो 20 साल खत्म होने के बाद फिर आपको लीज फिर से रिन्यू करानी पड़ेगी या वो चीज़ आपको वापस करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं इफ्लक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम के साथ साथ भी वो डिटोरेट होगी या फिर वो डिप्रिशिएट होगी, क्योंकि 20 साल के बाद में तो जगह आपकी नहीं रहेगी, दैट इज देन डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कैसा कि वो खराब होते चले जाना। अब मैं आपको इसका डिप्लीशन का और एग्जॉशन का एक प्रॉपर मीनिंग बनाऊंगा। डिप्लीट मतलब क्या होता, जैसे सपोज कि डिप्लीटिंग, जैसे आपकी कोयले के खान का एक एग्जांपल आई टेल यू फर्दर बताता हूँ। फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस मतलब आज की डेट में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे सपोज इसका एग्जांपल है और इंटरनेट पैक्स, जो हम डेटा पैक लेते, तो एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ पर आपको 1 GB डेटा के लिए आपको काफ़ी सारा पैसा पे करना पड़ता था। नाउ यू एंड डेट टू फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, ऐसा मिलता था कि 1 मंथ का आपको 1 GB मिल रहा है या 2 GB मिल रहा है, 5 GB पर मंथ। Now you get 3 to 4 GBs per day and that at a very reasonable cost। और पहले तो जियो ने वो सब हमको फ्री में ही दिया 5-6 महीने तक। Now you have to pay for it। That is again a different strategy, but I am telling you the example। मैं उसके फेवर में अपोज में नहीं बता रहा, बट आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल। सो दैट इज फॉल इन प्राइस। तो वो इतना सस्ता हो गया तो फिर अब आप इतना महंगा डेटा लोगे या नहीं लोगे, तो वो वैसे वो डिप्रिशिएट हो गया। लेट मी रिमूव दिस थिंग्स, वी हैव टू क्लियर इट। ओके, तो अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ और दूसरे जो कॉजेज थे, जैसे ऑब्लिसेंस, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम और टाइम फैक्टर। अब ये जो मैंने बताया आपको, दीज आर इंटरनल कॉजेज एंड यू कैन कवर इट टू सम एक्सटेंट। जैसे वियर एंड टियर आप यूज कर सकते हो, डिसयूज, मिसयूज, इम्प्रॉपर यूज, मेंटेनेंस और डिप्लीशन। ये सारी चीजें इट इज अप टू योर हैंड, ये आपके हाथ में, आप इन चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स है, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये हमारे हाथ के बाहर के फैक्टर। जैसे देखो कि जो कुछ भी, जैसे जल्दी उठना, पढ़ाई करना, वीडियो देखना, ये हमारे हाथ में है, लेकिन पेपर कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। वैल्यूएशन कैसा होगा, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। बट इफ़ यू कंट्रोल दिस फैक्टर्स प्रॉपरली, तो ये फैक्टर्स के से जो होना होता रहेगा, बट इन फैक्टर से जो लॉस होगा यू कैन रिकवर फॉर इट, वो लॉस आपका नहीं हो पाएगा। अगेन देयर आर अदर कॉजेस फॉर डिप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर ड्यूरिंग यूजेज ऑफ एन असेट। कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल टू एंटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल टू एंटिटी। मतलब ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसकी धीरे धीरे प्राइस कम हो गई, वो कैलकुलेट नहीं हो पाता, वो असेट ही नहीं रहेगा आज के डेट में, तो वो चीज़ें क्या हो गई फिर कि ठीक है आप उसको इसमें डिप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो उसके 1 साल बाद में वैल्यू कम होना ही होना है, आप चाहे उसको कितना भी मेंटेन करके रख लो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री असेट्स इन मार्केट, वही कि उससे बेहतर कुछ आ गया, बढ़िया कुछ आ गया, बहुत अच्छा कुछ आ गया। यूज ऑफ प्रोवाइडेड लाइफ ऑफ असेट, जितना उसका लाइफ था उतना लाइफ पूरा कंप्लीट हो गया, सो दैट अगेन कॉजेज डिप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स एज पर लाइसेंस पीरियड और यूजेज पीरियड। अब जैसे आपके पेटेंट्स रहते हैं ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए रहते हैं, तो फिर आपको टाइम लिमिट या फिर लाइसेंस जो है कुछ टाइम लिमिट था वो एग्जॉस्ट हो गया,
एंड डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी डन फॉर वेस्टिंग एसेट्स एज पर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब डेप्रिसिएशन क्यों करना पड़ता फॉर वेस्टिंग एसेट्स एज पर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि आपको क्या करना है कि अगर आप डेप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो वैल्यू आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और डेप्रिशिएशन की वजह से आप प्रॉपर वैल्यूज लगा सकते हो। जैसे आपने एक बुक ये मशीन खरीदी और आपने देखा कि 10 साल बाद में अगर मैं इसको बेचूंगा तो वो भी कैलकुलेशन रहता था, आज 1 लाख की खरीदी 10 साल बाद में मैं इसको बेचूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 20,000, तो मुझे 20,000 तो इसके मिलना ही मिलना है। तो मतलब आपको मशीन कितने की पड़ी, 80,000 की। अब वो 80,000 में भी आपने क्या उसको 10 साल यूज़ किया तो 1 साल का कितना लगा, सिर्फ 8,000, और 1 साल का 8,000 लगा और मशीन की यूज़ से अगर आप 8,000 से ज़्यादा कमा लेते हो तो देन दैट इज़ वर्थ। तो इसलिए भी आपको डेप्रिसिएशन करना जरूरी है। द एब्सोल्यूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। एब्सोल्यूट नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर हो सके, इसलिए भी डेप्रिसिएशन जरूरी है। अब दूसरा पार्ट ये भी होता कि व्हाट दे डू, दे कीप अ सेपरेट डेप्रिसिएशन अमाउंट, कि देखो भाई चीज़ें खराब होती चली जा रही तो अब हमको पता चलते चले रहा उसकी वैल्यू कम हो रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक अमाउंट अलग से रखेंगे। तो ये सब ओवरऑल मिला के क्या डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा। अब हियर वील अंडरस्टैंड इन मोर में डिटेल, यहाँ पे और थोड़ा आराम से देखते हैं कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या है। तो उसके सबसे पहले देखते हैं कॉजेस। जनरली हमको पेपर में सिर्फ इतना ही आता कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, हो गए तो गए, कभी मेथड आएगी, कभी कभी कॉजेज आ जाएंगे, बट वी नो वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ये कैसा है कि बाद में फिर आपको कभी ये पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये चीज़ें शायद आपकी पहले हुई भी नहीं होगी। बाय कॉन्स्टेंट यूज़, कॉजेज कि आप उसको यूज़ करते चले जा रहे हो तो उसका लाइफ खत्म हो गया तो इसलिए डेप्रिशिएट होगी। एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया। by obsolescence we have already discussed, by depletion, permanent fall in price and by abnormal factors। abnormal factors मतलब आग लग गई मशीन में, टूट फूट हो गया, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला, मशीन अचानक सडन से खराब हो गई, या फिर और भी कुछ हो गया abnormal, that can be anything। तो these are the causes। now what are the objectives, डेप्रिसिएशन क्यों, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन करोगे, because of depreciation we would be able to calculate the value of that particular thing। यानी आपने जो मशीन खरीदी 1 लाख में, जो 2 करोड़ में आपने खरीदी थी, तो आपको पता चला है कि इस साल में मुझे इस मशीन से अगर 10 लाख भी मिलता है इसकी वजह से, तो मशीन की कीमत आ गई है, मैं पूरे 2 करोड़ नहीं पकड़ूंगा। तो इसके वजह से आपकी प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन सही रहेंगे। अब एक छोटा सा सवाल कि कंपनी हमारी है, मशीन हमने खरीदी, प्रॉफिट और लॉस भी हमको हो रहा, तो मैं पहले साल में अगर 2 करोड़ भी पकड़ लूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मैं दिखा दूंगा कि 2 करोड़ नहीं जनरेट हो पाया रेवेन्यू, तो कंपनी लॉस में गई। तो अगर आप ऐसा दिखाओगे तो अगर आपकी कंपनी में जो कुछ भी इन्वेस्टर्स है वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, उनको तो दिखना चाहिए ना कि आपने जो पैसा लगाया उसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि कितने सारे टाइप के इन्वेस्टर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रीफरेंस शेयर्स है, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, देन उसके बाद में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से पूरी चेन बनी होती है, उसके आपके वेंडर्स होते हैं, डेवलपमेंट के लोग होते हैं, फाइनेंस पीपल, और पूरी दुनिया आपके बिजनेस में जुड़ी है। और क्यों जुड़ी है, क्योंकि आपका बिजनेस पैसे अर्न करता है, रेवेन्यू अर्न करता है। लेकिन अगर आप बताओगे तो अब समझ में आ रहा है कि डेप्रिसिएशन क्यों दिखाना पड़ता है, वो इसलिए दिखाना पड़ता है डेप्रिसिएशन ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर हो। अब आप ऐसा तो नहीं दिखा सकते हो कि आपने 2 करोड़ का परचेस किया और आप उसको पूरी तरह से छुपा दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वंस यू लूज द फेथ इन द कस्टमर्स, वंस द पीपल लूजेस फेथ इन यू, तो गुडविल एक बार आपका गया तो फिर आपको कुछ मिलना ही नहीं है। और हमने देखा था गुडविल का जो ऑर्डर है इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज एट अ हायर लेवल। भले उससे इमीडिएटली कैश ना मिले, लेकिन उससे आपको कैश मिलने के सारे रास्ते मैक्सिमम खुलते हैं। आपका गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो इसकी वजह से आपको चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अब हमारे समझ में आया कि डेप्रिसिएशन और क्यों, फॉर शोइंग असेट एट फेयर एंड ट्रू वैल्यू इन द बैलेंस शीट, ताकि उसकी आप फेयर वैल्यू दिखा सके। नहीं तो आपने दिखाया 2 करोड़ और आपने बताया कि पहले आपको सिर्फ उससे 5 लाख ही चाहिए, अब वो उसकी वैल्यू सपोज 2 करोड़ की मशीन है और आपने सोचा कि उसका 20 साल का लाइफ है, तो 1 साल में अगर 10 लाख भी उसने अर्न करके दे दिया तो उसकी वैल्यू आ गई, तो चलो मशीन बरोबर काम में आ गई। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 5 लाख ही हमको मिल जाए 1 साल में, तो ये आपकी गलत वैल्यू हो जाएंगी, तो लोग आपकी बैलेंस शीट पे भरोसा नहीं करेंगे। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसको दिखाना पड़ता है, आपके इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है, और जिन जिन लोगों ने पैसा दिखाया उनको दिखाना पड़ता है। आपके वेंडर्स देखते हैं, उसके बाद में आपके क्लाइंट्स देखते हैं कि वो भी देखते हैं कि नहीं आपकी इंडस्ट्री की हालत कैसी है, क्योंकि कोई भी डूबित खाते में पैसे नहीं डालने वाला। प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, ascertaining accurate cost of production, distribution of dividend out of profit only, avoiding overpayment of tax।
ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब ऐसा है कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो आपको टैक्स उतना भरना पड़ेगा अर्निंग के हिसाब से, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो फिर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसमें एडजस्ट कर सकते हो। और आपको पता है कि आपको डेप्रिसिएशन का पार्ट अगर निकाल लोगे, जैसे आपने 2 करोड़ की मशीन खरीदी और आपने सोचा कि नहीं इसका मेरे को कॉस्ट ही नहीं पकड़ना है, तो फिर आपने वो हटाई दिया और उसके वजह से आपको 10 लाख उसके वजह से आपको 10 लाख कुछ अर्निंग आया है, तो वो 10 लाख तो एडिशनल हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट में काउंट करना पड़ेगा, तो फिर आपको उसको ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी, इफ यू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो इसके लिए भी हमको चाहिए असर्टेनिंग एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया तो डेप्रिसिएशन की वजह से आप उसकी एक्यूरेट कॉस्ट बता सकते हो, नहीं तो अगर ये आपने फैक्टर कंसिडर ही नहीं किया तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द कॉस्ट। प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। अब ये आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन से मतलब रिप्लेसमेंट का असेट्स का कैसा करोगे, तो अब हमको पता है कि 10 साल के बाद में हमारी मशीन 20,000 में बिकने वाली है, तो ये 20,000 में बिक जाएंगी 10 साल के बाद में, तो ऐसी पुराने जो आज की डेट में कई मशीन्स बिकती होंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा आएगा कि ठीक है हम रिप्लेस कर सकते हैं ये एसेट्स को, ठीक है हमने ये दे दिया और फिर से नहीं ले ली। और बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग क्या करते हैं मशीन परचेस कर लेते हैं और वापस परचेस करके फिर लीज पे दे देते हैं कि मैंने आपसे ही परचेस किया और आपको ही वापस दे दिया चलाने को, कि वो मशीन तो मेरे लेकिन अब आप यूज़ करो। तो दीज आर द थिंग्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, चांसेस टू ऑब्लेसेंस, एडिशन टू असेट्स, लीगल प्रोविजन। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, डिप्रिसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, उसका लाइफ कितना था, फिर आप उसको बेच के जो पैसा मिलेगा साल्वेज वैल्यू और रेसिडियर वैल्यू जिसको हम स्क्रैप बोल रहे हैं फिलहाल, वो कितना मिलेगा, और वो ऑब्सोलेट कब होंगे, क्योंकि कोई तो नहीं चाहता ना कि आज हमने एक मोबाइल खरीदा सपोज और वो 8 ही दिन में ऑब्सोलेट हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। इट शुड टेक, हमको पता है कि आज ना कल ये मोबाइल एक जैसे एक कितना भी स्मार्टफोन लो, आप जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उससे बेहतर और बढ़िया मार्केट में और सस्ते में आता चला जाएगा, बट वो आज के आज तो नहीं आएगा ना, जैसे मैंने आज लिया और 8 दिन के बाद में फिर दूसरा वो पूरा ऑब्सोलेट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये चीज़ भी हमको देखना पड़ेगा। देन एडिशन टू एसेट्स एंड लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन मतलब कई सारी चीज़ें, लीज होती है कि लीज फिर पहले 99 ईयर्स की हुआ करती थी, फिर वो 30 ईयर्स की हो गई, 29 ईयर्स की, तो ये सारी लीगल चीज़ें उसमें रहती। और जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेस में बहुत सारी लीगल बातें रहती है उसमें, जैसे जो शेयर्स जहाँ पे लोगों का पैसा आया वहाँ पे सरकार की पैनी नज़र रही थी और सारे रूल्स रेगुलेशंस कायदे कानून आपको फॉलो करना पड़ता। अगर आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री और आपके पास एम्प्लॉय वर्क करे तो भी सरकार की उस पर नज़र रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी इंडस्ट्री शुरू करूँगा, कुछ भी फेयर दूंगा लोगों को, वो तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर्स का यूनियन रहता, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। सो दीज आर सो मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। तो डेप्रिसिएशन की अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आए कि ज़रूरत क्या है, क्यों किया जाता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता, और डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है, किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हमको क्यों ज़रूरी है डेप्रिसिएशन, और फिर उसके फैक्टर्स कौन कौन से जो उसको अफेक्ट करते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो ये था कि डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर ऑफ अ फिजिकल एसेट, तो ये इक्विपमेंट का हो जाता है क्योंकि उसका वियर एंड टियर होगा फिजिकल एसेट का। अब उसके बाद में सप्लाई ऑफ रिसोर्स, एग्जॉशन ऑफ अ सप्लाई ऑफ रिसोर्स। एग्जॉशन मतलब जैसे सपोज कोयले की खदान है, उसका पूरा कोयला ही खत्म हो गया, तो आपने पूरा कोयला निकाल के वो खदान को अब खाली कर दिया, अब वहाँ पर कोयला नहीं है। सेम अबाउट डायमंड माइंस या कुछ भी ऐसा, जैसे आपने गन्ना लिया, उसको आपने निचोड़ के उसमें पूरा रस निकाल दिया, तो वो डिप्लीट हो गया, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, वो रिसोर्स ने जितना आपको देना था उतना पूरा पैसा, उतनी पूरी वैल्यू उसने आपको दे दी, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इट इज हैविंग नथिंग। अब उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है वो रिसोर्स को, तो वो क्या हो गया, डिप्लीशन। मतलब द एनर्जी या फिर वो रिसोर्स जो भी आपको बेनिफिट करा सकता है उसने पूरा दे चुका है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर हुआ। अभी डिप्लीशन भी डेप्रिसिएशन का ही कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन डिप्लीशन से भी होता है कि जब उसने आपको सब कुछ दे दिया उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करोगे, आप उसको फेंक दोगे, भंगार में डाल दोगे, या फिर कुछ भी यूजलेस हो जाएगा, जो एक्चुअल उसका सर्विस था उस सर्विस को नहीं प्रोवाइड करेगा। एमोर्टाइजेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। जैसे पेटेंट है, तो आपका पेटेंट था कुछ साल के लिए, अब उसके बाद में एक्सटिंक्ट ही हो गया कि उसके बाद में पेटेंट नहीं रहेगा, कुछ और आ गया। या फिर इसको देखते आपका पेटेंट था वो खत्म हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, तो पूरी तरह से नष्ट होना। जैसे हमने देखा था ना कि डायनासोर्स होते हैं, अब मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मैंने सुना है और मैंने एक्चुअली देखा है फिल्मों में।
गॉडजिला पिक्चर में बताए थे कि भाई डायनासोर है करके, एक ज़माने में थे, बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए, उनके स्केलेटन्स दिखाए, उनके एग्स दिखाए, उनके पंजों के निशान दिखाए, और बहुत कुछ ऐसा दिखाया दैट कॉम्पेल अस टू थिंक अबाउट इट कि डायनासोर्स थे, वो प्रजाति थी, बट वो एक समय के बाद में लुप्त हो गई। तो इसी तरह एक्सटिंक्ट होना मतलब क्या हो गया कि वो लुप्त होना हो गया। लुप्त होना मतलब वो खत्म ही होगी, पूरी तरह से नष्ट होगी, पूरी तरह से चलेगी। तो एमोर्टाइजेशन मतलब यही होता है कि पेटेंट्स आपने किया, लेकिन आपका पेटेंट कब तक है, कितने टाइम के लिए, तो फिर उसके बाद में आपका पेटेंट की वैल्यू पूरी चलेगी। या फिर आपको रॉयल्टी कब तक मिलती रहेगी। अब ये काफ़ी सारी डिटेल में टर्म्स है, हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन सर्च अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पेटेंट, व्हाट इज द रॉयल्टी एंड व्हाट इज द कॉपीराइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉपीराइट एंड अ पेटेंट। कॉपीराइट किसको कर सकते हैं, पेटेंट किसको कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, एंड सो मैनी कंसेप्ट। और फिर यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन किसका होगा, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा। और डिप्लीशन मिनरल एसेट्स, जैसे माइंस है, ऑयल फील्ड्स है, जैसे तेल निकलता ना, तेल के कुएं, अब तेल ही निकलना उसमें से बंद हो गया, सोने की खदान है, सोना ही निकलना बंद हो गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो हो जाता है डिप्लीट, मतलब पूरा रिसोर्स आपको जितना भी था आपने मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइज कर लिया। एमोर्टाइजेशन मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, अब बस वो ओवर हो गया, उतना ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन खत्म हो गई। और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स का तो हम समझ ही सकते हैं। सो टुडे इतना हम लोगों ने देखा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाई डेप्रिसिएशन इज डन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म्स लाइक amortization, depletion, obsolescence, and so many things. So next part we'll see it in the next lecture. Till then, thank you class, good day, jai hind.